ایک نعرہ لگایا جاتا ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہتے ہیں حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو آپس میں مل جانا چاہیے، سب کو آپس میں اتحاد کر لینا چاہیے۔ ابھی ناگپور کے اندر صوفی کانفرنس والوں نے ایک جلسہ کیا ہے، اس جلسے کا عنوان ہی یہ تھا اتحاد بین المذاہب۔ آج مجھے عنوان دیا گیا ہے اتحاد بین المذاہب کے نقصانات، اس عنوان پر تھوڑی دیر تک میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج کہا یہ جاتا ہے ہم بڑے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے سب آپس میں مل جائیں، سب اتحاد کر لیں، مگر میل ملاپ کس میں ہوتا ہے؟ ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالیے، اسی میں 100 گرام پانی ڈالیے، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر اسے ملاتے رہیے، جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے پانی الگ ہے، پتہ چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کہنے دیجئے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہو سکتی، تو نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہوگا۔ آپ کہو گے نبی کا غدار ہے کون؟ آپ اجازت دو میں چند منٹوں میں آپ کو بتا دوں، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ کل تک یہ صوفی کانفرنس والے نعرہ لگاتے تھے وہابی کی نہ امامت منظور ہے نہ قیادت منظور ہے، اور اب کی مرتبہ انہوں نے جو پوسٹر لگایا اس میں انہوں نے دیا محبت سب سے ہے، عداوت کسی سے نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ایمان والے ہیں اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، مگر یہ سب سے محبت سکھا رہے ہیں۔ بولو اے صوفی کانفرنس والوں، جن لوگوں نے اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا رکھ کہا، ہمارے آقا و مولا کے علم پاک کو کتے سور کے علم تشبیہ دی، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں بکواس کرتے ہوئے لکھا، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرے ناچیز سے کمتر ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، بولو ایسے لوگوں سے اتحاد کرو گے؟ کتنے لوگ اتحاد نہیں کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ان کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے، میل ملاپ تو نہیں رکھو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دی کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ آج ہمیں ڈر اور خوف دلا کر اتحاد کی دعوت دیتے ہو۔ آؤ عالم تصور میں ہم آپ کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں لے چلیں۔ یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نظر کے سامنے لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، 3 دن ہو گیا ہے، کھانے کا ایک دانہ نہیں ملا، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ 18 سالہ جوان بیٹے، علی اکبر کی لاش سامنے موجود ہے، دودھ پیتے بچے، علی اکبر کی لاش سامنے موجود ہے، اولو محمد جیسے بھانجے کی لاش سامنے موجود ہے، عباس علمدار جیسے بھائی کی لاش سامنے موجود ہے۔ کیا امام حسین نے کبھی یہ کہا کہ اب ان سے اتحاد کر لینا چاہیے؟ کیا علی اکبر نے یہ کہا بابا جانے وہ ایک وقت کی نماز اس بڑی جماعت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے؟ پتہ چلا داڑھی ادھر بھی ہے، داڑھی ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، مگر الگ اذان ہو رہی ہے، الگ اقامت ہو رہی ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا نبی کے غداروں سے، آل رسول کے دشمنوں سے نہ کل ہمارا اتحاد ہوا تھا، نہ آج اتحاد ہوا ہے، نہ زندگی کے آخری سال تک اتحاد
होगा। और इन जालिमों से इत्तेहाद करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हजरत मोहम्मद बिन सीरीन 33 हिजरी में जिनकी विलादत हुई है, हजरत इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं, उनका वाकया सुन लीजिए। तशरीफ फरमा है, जो बदमज़हब आए, उन्होंने कहा कुरान की कुछ आयतें सुनाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं सुनता। रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाना चाहता हूँ। फरमाया नहीं सुनता। और डांट कर फरमाया या तो तुम दोनों चले जाओ या मैं यहाँ से जाता हूँ। वो खाइब व खासिर होकर वहाँ से चले गए। लोगों ने कहा हुजूर कुरान सुनाना चाहते थे, हदीस सुनाना चाहते थे, सुन लेते तो क्या बुरा होता। फरमाया सुनो, मुझे खौफ पैदा हुआ, ये मेरे रब का कलाम सुनाएंगे, मेरे नबी के हदीस सुनाएंगे, उसमें अपनी तरफ से ताबील मिला लेंगे, और अगर कोई उनकी ताबीर मेरे दिल में जम गई तो मैं हलाक और तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। या कम से कम इतना तो होगा वो बदमज़हब है, मेरे रब का कलाम सुनाएंगे, मेरे नबी की हदीसें सुनाएंगे, उनकी मेरे दिल में मोहब्बत पैदा होगी। कहाँ गए ये सूफी कॉन्फ्रेंस वाले? क्या हजरत मोहम्मद बिन सीरीन से ज्यादा इनका पुख्ता अकीदा है, उनसे ज्यादा पुख्ता ईमान है। इसलिए मुसलमानों, बरेली शरीफ की तरफ कल भी तुम तवज्जो करते थे, आज भी मुतवज्जे रहो, और जो पैगाम बरेली शरीफ के शहजादे की तरफ से दिया जाए उसी पर अमल करो। चलते चलते दो तीन बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा लें। आज से पहले हमारा तरीका ये था कि हम कहीं सफर में जाते थे, नमाज का वक्त हो जाता था, हम वजू करके कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे। हालांकि हमारी नमाज से न तो ट्रैफिक को कोई मसला पेश होता था, और आप तारीख उठा के देखो, आज तक कभी भी कहीं भी किसी गैर मुस्लिम ने हमारी नमाज पे कोई एतराज नहीं किया। खंदा पेशानी से कहते थे आप नमाज पढ़ लीजिए, इसलिए कि वो भी जानते हैं नमाज एक अहम इबादत है। हमारे रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसानों को मगर वो एहसान माने। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जितना तालीम वो नहीं दिला सकती है, हम ज़कात फितरा वसूल कर अपने बच्चों को मदरसों में बैठाकर उससे ज्यादा पढ़ा देते हैं। हम तो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं कि तुम्हारे खजाने का करोड़ों रुपया बचाते हैं, और उल्टा तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, हमारे मदरसों के सर्वे के नाम पर बहकाने की कोशिश करते हो। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सर्वे करना है करो, और जरूर करो, मगर जो कमियां मदरसों में हो उन कमियों को पूरी करो। अगर कोई मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है तो सर्वे करने के बाद उसे मंजूरी दो, और अगर किसी मदरसे को बंद करने की कोशिश की तो मुसलमान इसे गवारा नहीं करेगा। इसलिए कि हमारे दीन की तालीम मदरसों से होती है। बोलो ए इमाम मदरसा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप इसे पसंद करोगे? बोलो पसंद करोगे? मदरसों को बंद होना चाहिए? बोलो नहीं बंद होना चाहिए। बोलो नहीं बंद होना चाहिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ, ए आला हजरत इमाम अहमद रजा के इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप जन्नत चाहते हो? कितने लोग जन्नत चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। ये अहमदी मस्जिद है, हुजूर आला हजरत के नाम लेवा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के नाम लेवा, हुजूर मुफ्ती आजम के नाम लेवा। एक दो नहीं, करोड़ों की लागत से मस्जिदें पूरी दुनिया में एक नहीं हजारों लाखों की साल चलने की अपील की जाती है। अब तक तामीर मुकम्मल नहीं हुई। आखिर वो दिन कब आएगा जब हमदी मस्जिद मुकम्मल होगी? इसलिए ये 100 रुपए का कूपन आप तक जा रहा है, आप इसमें कोई कंजूसी न कीजिएगा। अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से, जो कब्र में चले गए उन मरहूमीन के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने पीर और उस्ताद के नाम से 10 कूपन लीजिए, 11 कूपन लीजिए, आला हजरत के नाम पर 25वीं कूपन लीजिए, सरकार मुफ्ती आजम के नाम पर 14 कूपन लीजिए, और इस तरीके से करके इस हमदी मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा बटाइए। बोलो आपको हिस्सा बटाना है? कितने लोग ताउन करेंगे? जरा हाथ उठाइए।
अल्लाह तबारक ताला इस हामदी मस्जिद की तामीर में हमें हिस्सा बटाने की कोशिश कर लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। खाली हॉस्टल के कमरे न गिनो, खाली बच्चों की तादाद न गिनो, खाली लेटरिन बाथरूम न गिनो, बल्कि ये भी देखो कि अगर क्लास रूम की कमी है तो वो सब क्लास रूम बनाओ, अगर हॉस्टल की कमी है तो हॉस्टल बनवा के हमें दो, और अगर बच्चों के लिए खाने पीने की सहूलत नहीं है तो खाने पीने की सहूलत का इंतजाम करो। अगर तुम्हें सर्वे करना है सर्वे करो, और जरूर करो। हम न सर्वे से कल घबराते थे, न आज घबराते हैं, न जिंदगी के आखिरी सांस तक घबराएंगे, इसलिए कि हमारे इन मदरसों में न दहशतगर्दी कल सिखाई जाती थी, न आज सिखाई जाती है, न आइंदा कल सिखाई जाएगी। यही मदरसे है जिन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को पैदा किया है, यही मदरसे है जिन्होंने मुफ्ती किफायत अली काफी को पैदा किया है, यही मदरसे है जिन्होंने अशफाकुल्लाह खां को पैदा किया है, यही मदरसे है जिन्होंने रोहिला पठान हाफिज रहमत खां को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को पैदा किया है, जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया है। हुकूमत को चाहिए कि वो एहसान माने, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जितना तालीम वो नहीं दिला सकती है, हम ज़कात फितरा वसूल कर अपने बच्चों को मदरसों में बैठाकर उससे ज्यादा पढ़ा देते हैं। हम तो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं कि तुम्हारे खजाने का करोड़ों रुपया बचाते हैं, और उल्टा तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, हमारे मदरसों के सर्वे के नाम पर बहकाने की कोशिश करते हो। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सर्वे करना है करो, और जरूर करो, मगर जो कमियां मदरसों में हो उनके लिए ये 100 रुपए का कूपन आप तक जा रहा है। आप इसमें कोई कंजूसी न कीजिएगा। अपने नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से जो कब्र में चले गए उन मरहूमीन के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने पीर और उस्ताद के नाम से 10 कॉपिन लीजिए, 11 कॉपिन लीजिए, आला हजरत के नाम पर 25वीं कॉपिन लीजिए, सरकार मुफ्ती आजम के नाम पर 14 कॉपिन लीजिए, और इस तरीके से करके इस हामदी मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा बटाइए। बोलो आपको हिस्सा बटाना है, कितने लोग ताउन करेंगे, जरा हाथ उठाइए। अल्लाह तबारक ताला इस हामदी मस्जिद की तामीर में हमें हिस्सा बटाने की कोशिश कर लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। और जरूर करो। हम न सर्वे से कल घबराते थे, न आज घबराते हैं, न जिंदगी के आखिरी सांस तक घबराएंगे, इसलिए कि हमारे इन मदरसों में न दहशतगर्दी कल सिखाई जाती थी, न आज सिखाई जाती है, न आइंदा कल सिखाई जाएगी। यही मदरसे है जिन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को पैदा किया है, यही मदरसे है जिन्होंने मुफ्ती किफायत अली काफी को पैदा किया है, यही मदरसे है जिन्होंने अशफाकुल्लाह खां को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने रोहिला पठान हाफिज रहमत खां को पैदा किया है, यही मदरसे हैं जिन्होंने मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को पैदा किया है, जिन्होंने तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया है। हुकूमत को चाहिए कि वो एहसान माने, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जितना तालीम वो नहीं दिला सकती है, हम ज़कात फितरा वसूल कर अपने बच्चों को मदरसों में बैठाकर उससे करोड़ों रुपया बचाते हैं, और उल्टा तुम